Welcome, dear students. Welcome to this session, another session on Road Not Taken. We have already covered some parts of Road Not Taken, means initial introductory part, wherein I had given word meaning and usage of those phrases, those words which have appeared in this text of this poem of Road Not Taken, and which you can use in your everyday vocabulary, as I had promised while beginning this series of teachings lessons, that I will give you such words, such phrases which you can use in your everyday language. तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। रोड नॉट टेकन के शब्द और उनके कुछ प्रयोग हमने पिछले पाठ में देख लिए हैं। अब इस पाठ में हम रोड नॉट टेकन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करेंगे, कवर करेंगे। So let us begin with this poem. As you know that this poem is written by Robert Lee Frost. He is an American poet and he is known for his depictions of rural life and in filling up deeper meanings of life in very simple everyday metaphors. तो आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं और ये जाने जाते हैं अपने जो उनका जो ग्रामीण जीवन है उसकी उसके वर्णन के लिए, और अपनी कविताओं में ये बहुत ही सहज सरल तरीके से जीवन के गहरे अर्थों को ये संप्रेषित करते हैं, इसलिए जाने जाते हैं। तो आइए पहला पैराग्राफ हम इसमें देखते हैं एक छोटा सा एनिमेशन के द्वारा। ये एनिमेशन इसलिए है कि बस आपको याद रहे कि कैसे इस जो कविता का अर्थ है वो वास्तविक रूप पर विजुअल वे में कैसे दिखेगा। हियर इज अ स्मॉल एनिमेशन, you can see it is just the first paragraph, okay, and in this paragraph, in this animation, you can see that a lady is walking, okay. So I will explain it to you later on that why is it relevant. So let's watch it. So here you can also see the text and lady walking on a dense yellow wood, okay. So here we can say two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent through the undergrowth. So this is the first stanza, and we will go through it. We will understand it. We will explain it. There are some major themes involved in this lesson, and this is really a very very deep lesson. You will really like it. तो अब हम इस पोयम, इस कविता को पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, ये एक बहुत ही गहरी कविता है, डीप पोयम है ना। ये क्यों गहरी कविता है, और ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही रुचिकर होने वाली है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जीवन आपका जो लाइफ है ना, ये जो आपका जीवन चल रहा है, आपकी जिंदगी, आप पैदा हुए और आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। यू गॉट बर्थ एंड नाउ यू आर growing with age. So this is life. You are breathing, you are eating, you are having fun, you are studying. आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं। ये जीवन है ना। और जीवन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आप मर नहीं जाते। Until you die. कब आप मरेंगे ये आप ही जानते हैं। Nobody else can tell. And तो till the time you got, what is life? What is life? हम बहुत चीजें जानते समझते हैं, लेकिन हम कभी ऐसे अपने आप से नहीं पूछते What is life? What is life? अब ये समझने की बात है। What is life? तो अगर हम सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से देखें, बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो यू गॉट बर्थ, पैदा हो गए, फिर जीवन भर जीवन जिए और मर गए। सो यू सी दिस एक्सपेंस फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। दिस इज कॉल्ड लाइफ। इज इट और नॉट? ये जो आपका जो यात्रा है, इसको क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। एम आई रॉन्ग और राइट? दिस इज राइट। Actually, this is what is called life. Ab now in this life there are stages. Here you are child, then you'll become adolescent. Adolescent मतलब आप, मतलब you are
बीइंग यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एडोलेसेंट, मतलब आप हैं एडोलेसेंट, यू आर एडोलेसेंट 15 से लेके, मतलब 12-13 साल से लेके 18-19 साल तक। फिर उसके बाद आप 19 से 30, फिर 30 से आगे 60, फिर 60 से आगे का जीवन। तो इस तरह से आपका जो लाइफ है इट इज डिवाइडेड, बट एक्चुअली टुगेदर इट इज लाइफ। So this poem is about the journey of this life, journey of this life. That how do you take the journey of this life? कैसे आप जीवन की इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। So now children, dear students, you can think of your life as of now. अभी आपका जो जीवन है, अभी जो आपका जीवन रहा है, जो आपकी स्मृति है, जो मेमोरी है, एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड से आपको याद है कि आपका जीवन कैसा था और अभी आप नाइन्थ में पहुंच गए हैं। सो यू कैन रिफ्लेक्ट, यू कैन थिंक अबाउट द लाइफ यू हैव लिव्ड बिटवीन दीज मेनी ईयर्स। तो अभी जो आपका जीवन है बच्चों, जो आप 3 से 4 साल, तीसरी से चौथी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक में आप पहुंच गए। तीसरी चौथी क्लास मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से चीज़ें हमें याद हो जा रहती हैं, हमें पता है कि हम थर्ड, चौथी, पांचवी, छठवीं, चौथी, पांचवी क्लास में से क्या कर रहे थे, क्या थे, आपको घटनाएं याद है। यू रिमेम्बर स्टोरीज, यू रिमेम्बर, यू हैव मेमोरीज, यू हैव मेड फ्रेंड्स, आपकी स्मृतियां हैं, आपने दोस्त बनाए हैं। एंड एज ऑफ लाइफ एज ऑफ नाउ, मतलब अभी का जो जीवन है, नाइन्थ क्लास में आप पहुंच गए हैं। नाउ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग द अडल्ट मोड ऑफ लाइफ, एडोलेसेंट मोड ऑफ लाइफ। अब आप बड़े हो गए हैं, आपके जीवन में बड़े स्टेक्स आ गए हैं, बड़ी चीजें आ गई हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या आ गई है, जो आगे आपके आने वाले सिर पे फूटने वाला है, दैट इज 10th बोर्ड एग्जाम। Okay, so this is the biggest thing. And the road you are taking is to this board exam. Okay, this poem is about road not taken, but obviously, you as a student of ninth class or 10th class, you have to take road to this exam. Okay, and unfortunately, you cannot take any other road. You have to take this road. So let us understand in this context of your life how this poem is important. कवि, हम समझेंगे कि ये जो कविता है आपके जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। कवि ने क्या कहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने कब, क्यों, कैसे ये कहानी लिख दी, दैट इज वन अनदर थिंग। व्हाई डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट write this poem, that is one thing, that is serious, but also you need to know that how does this apply to you. मैथमेटिक्स में आप कैसे पढ़ते हैं, आप एक फॉर्मूला याद करते हैं, फिर उससे सवाल लगाते हैं, ठीक है, यही होता है। यहाँ क्या है, ये पोएम है, पोएम इज फॉर्मूला, एंड यू हैव टू अप्लाई इट वेयर, ऑन योर लाइफ, then only you can understand a poem. This is the essence of any literary work, of any। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, समझ में आने, मुझे भी कभी कभी नहीं समझ में आता लिख देने के बाद, बट यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। एसेंस ऑफ लिटरेरी वर्क, ओके, कि आप जो ये जो पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। तो अब ये लिटरेचर का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इससे आप क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग करेंगे बाद में। उससे इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, पुल बनाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है। डॉक्टर, आप नीट पास कर लेंगे, नीट पास करके क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, है ना। पढ़ाई में क्या करेंगे आप, ह्यूमन बॉडी जो आपकी है ना, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर, जिसमें दिमाग छोटा सा है, इसको रिपेयर करना सीखेंगे आप, है ना। उसको रिपेयर करेंगे तो आप बनेंगे नीट के थ्रू डॉक्टर, यही काम है। तो ये सारे विषयों की भूमिका है ना। अब ये जो पोएम वोएम या जो कोई भी लिटरेचर आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों पढ़ाया जाता है। तो ये है एक फॉर्मूला जिसको आपके जीवन पर आपको अप्लाई करना है। ये दिस इज व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू गेन insights about our own life, insights about our own life, own lives, so that we can live
इन अ बेटर वे। बेटर वे, वी कैन लिव इन अ बेटर, व्हाट इज बेटर वे, है ना? बेटर वे की काम, मतलब शांति से, पैनिक नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया, समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, डो नॉट, मीन्स जस्ट डो नॉट कमिट सुसाइड, है ना, जाके कूद गए छत से, ये सब नहीं करना है। This is the motto of this literature. Okay. So here we are going to study this poem, and this is very relevant poem. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. दो सड़कें, दो सड़कें एक येलो वुड, वुड माने जंगल, पीले जंगल में डाइवर्ज हो गई, एंड आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब देखो यहाँ जो टू रोड्स है ना, इससे ऐसा लगता है कि दो ठो रोड चल रही थी और वो अलग अलग हो गई, ऐसा नहीं है ना? ये थोड़ा you need to understand it, it gives a sense that there were two roads and they diverged. How is it? It is like this: there was one road, है ना? There was one road and it diverged, because obviously you are on always walking on one road. Hmm? You are walking on one road, you can walk only on one road. If you are walking, there will be one road. You are walking in two roads. Now these two, these are A and this is B. These two roads diverged. This is called divergence, and this separation is called divergence, and this area is called fork. You will get to know about it very soon. This is also a word, you, this has occurred in your this thing text. So this is called forge and this is called divergence. So two roads diverge, दो, एक मैं दो रास्तों, एक रास्ते पर चल रहा था और वो रास्ते दो रास्तों में डाइवर्ज हो गए। एक घर, एक पीले जंगल में। पीले जंगल से क्या मतलब है? येलो वुड, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज येलो वुड? इट सिग्निफाइज द चेंज। Okay, I have given it in your text also. Yellow means change here. This is a metaphorical metaphorical use metaphorical use metaphor, ठीक है? तो this is a metaphorical use. Yellow means change. So this I two roads diverge in a changing wood. Change, yellow wood means क्या है? बदलता हुआ जीवन, changing world, changing lives. And sorry I could not travel both. और मुझे दुख है कि मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सका। कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? आई कुड एंड आई एम फीलिंग सॉरी, आई एम पैराफ्रेजिंग इट इन इंग्लिश, एंड आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मुझे दुख है कि मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड, और बीइंग एंड आई बिकेम ओनली वन ट्रेवलर, बी वन ट्रेवलर, I became one traveler, and long I stood, and I stood there for quite some time. I waited there. I just oversaw the path and tried to understand what is it. Hmm. And looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. And I kept on looking as far as I could see. I kept on looking. I kept on seeing. I kept on observing as long, as far, as distantly as I could see to where it bent in the undergrowth. ये कहाँ पर जाकर bent, खत्म हो गया अंडर ग्रोथ में, झाड़ियों में, है ना? अंडर ग्रोथ ये दिख रहा है, ये अंडर ग्रोथ है ना? अब यहाँ इसमें ये जो हमने यहाँ फोटो लगाई है, इसमें द पिक्चर यू कैन सी, where does it depict, to which area does it depict? This picture is not just for representation. You see here कि this part ना, here this part you can see undergrowth, है ना? The person is standing here and two roads are diverging, and this person is watching very curiously कि this है ना, यहाँ पर undergrowth, ये और इधर भी देख रहा है। दो रास्ते हैं, A और B, जैसा कि as I had shown you, there are two roads and here are undergrowths, है ना? ये these are undergrowth. Let me highlight it in a way. ये you see here undergrowth, है ना? Ink should be red, then it is good. So you see here undergrowth. Here. So here it is. He is talking about this area, है ना? And he is standing here, and walk down one as far as could, and to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर ये खत्म हो गया। Undergrowth ये है झाड़ी. This is called undergrowth. So I hope this is clear.
ये अभी इंट्रोडक्टरी स्टैंजा है पोएम का, तो इसमें वो बता रहे हैं कवि कि वो एक जंगल पे के किनारे पर खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि 2 रास्ते आगे जा रहे हैं, जिसमें से कि दोनों रास्ते डिसअपीयर हो जा रहे हैं आगे। दोनों रास्ते गायब हो जा रहे हैं आगे। ये इसका कुल कहानी है इस पैराग्राफ का। ये बस एक शुरुआती पार्ट है और हम इसको टेक्स्ट है, स्टैंजा है, अब इसको हम आगे ले चलेंगे। इसको इंग्लिश में मैं यहाँ पर पैराफ्रेज कर दिया है। द स्पीकर इज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट इन ऑटम वेयर द पाथ स्प्लिट्स, जहां पर रास्ते अलग होते हैं, है ना, अलग होते हैं, अलग होते हैं, स्प्लिट्स इन टू। ही रिग्रेट्स, वो पश्चाताप करता है कि ही कैनॉट ट्रेवल डाउन बोथ पाथ्स एट द सेम टाइम बिकॉज ही इज ओनली वन पर्सन। ही स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम लुकिंग डाउन वन पाथ एज आई एक्सप्लेन्ड, ट्राइंग टू सी वेयर इट लीड्स, कहाँ जाता है, लीड्स, वेयर इट लीड्स, until it disappears in the bushes, जब तक कि झाड़ियों में खत्म हो जाए। अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। स्पीकर जा रहा है एक जंगल के रास्ते पर और वसंत है वहां पर। वसंत भी चेंज को ही रिफ्लेक्ट करता है। ऑटम मीन्स उनके लिए परिवर्तन, परिवर्तन। व्हेन द पाथ स्प्लिट्स, जब रास्ते बट जाते हैं। ही रिग्रेट्स दैट ही कैनॉट ट्रेवल बोथ, वह पश्चाताप करता है, वह पश्चाताप करता है कि वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। बिकॉज ही इज द ओनली वन पर्सन, वो क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है। ही स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम लुकिंग डाउन वन पाथ, वो बहुत देर तक रास्तों को देखता रहता है। क्यों देखता है? सोच रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। और वो रास्तों को तब तक देखता है जबकि रास्ते आगे जाकर झाड़ियों में खत्म नहीं हो जाते। तो ये इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है। इसका जो बड़ा अर्थ है, जो बाकी इसका जो दूसरा अर्थ है जो आपको समझना चाहिए, कि जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास हमेशा विकल्प होता है कि आप किस चीज को चुने, है ना। When you are progressing ahead in your life, then you have always option that what kind of path you will choose. Let me bring it down to you in a very modular manner. मैं आपको इसको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझाता हूँ कि आपके जीवन में आप 8th क्लास से आगे बढ़े, अब आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ये आपने चुना। सो दिस इज कॉल्ड road, not this is called roads. Two roads diverged the moment you passed out of 8th, two nahi 3 or 4 roads diverged. Science, arts, commerce, so all these are what? Roads. These are roads. ये डाइवर्ज हो गया और आपने सोचा काफी देर तक खड़े होकर कि कौन सा जो है आपको पाथ लेना है ना। So this is something very important. This is the essence of the poem. Now the second stanza. The second stanza is, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was greasy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेकंड पैरा है। इसका मतलब है देन टुक द अदर, तब उसने फिर दूसरा रास्ता लिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसने दूसरा रास्ता लिया और वो दूसरा मतलब बी लिया, है ना, बी रास्ता लिया, बी रास्ता उसने चुन लिया, है ना। आपके याद करने के लिए जो ऊपर हमने यहाँ बनाया हुआ है, ही हैज ऑप्टेड फॉर बी, है ना। क्योंकि क्यों बी लिया बाद में देखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये बी रास्ते पर आगे चल पड़ा है। जस्ट एज फेयर, ये भी वैसा ही है जैसा कि ए था, जस्ट एज फेयर, है ना, ये उतना ही अच्छा है। एज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये जो है यहाँ पर, यहाँ बेटर क्लेम देखिए, यू कैन, आप इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से देखेंगे। बेटर क्लेम का मतलब है कि यहाँ जाना ज़्यादा उचित लगा उसको। इसका मतलब है बेटर क्लेम। पर एंड हैविंग परहैप्स, शायद, बेटर क्लेम मतलब यहाँ जाना उसको ज़्यादा उचित लगा, इसमें ज़्यादा इसको अच्छाई दिखी, ज़्यादा इसको लगा कि नहीं यहाँ ठीक रहेगा जाना, इसलिए उसने बी रास्ता चुना, है ना। ही चोज फॉर पाथ बी एंड बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये ग्रासी था, उस पर घास थी और उस पर कम चला गया था। इस पर घास थी एंड इस पर बहुत ज़्यादा इस पर चला नहीं गया था। वॉन्टेड वेयर, इसको थोड़ा अलग अलग करें। वॉन्टेड मतलब वेयर, वेयर एंड टियर मतलब नष्ट होना, टूट फूट होना, उसको अभी टूट फूट की आवश्यकता थी। वियर एंड टियर बोलते हैं इसको, वियर एंड टियर मतलब टूट फूट। तो वांटेड वियर एक फ्रेज आता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये है, उसको टूट फूट की आवश्यकता थी, मतलब वो बचा हुआ था अभी, है ना।
and though as far as that passing there had warned them really about the same. और जहाँ तक दोनों जो जहाँ तक दूसरे रास्ते की बात थी वो भी लगभग इतना ही था, ठीक है। वो भी जो दूसरा रास्ता कौन सा, ए जो रास्ता है वो भी, उस पर भी लोग एज पासिंग देयर हैड वॉर्न देम इक्वली अबाउट द सेम, मतलब दोनों पर लगभग उतने ही लोग चले हैं, उतने ही लोग गए हैं, मतलब देखने से दोनों रास्ते सेम लगते हैं। नाउ I'll explain it in English that he took the other path, है ना, path B, he took the other path because it appeared to him, है ना, that perhaps this is the better way to travel. It has a better claim. What is claim? There is no, इसका मतलब दावा नहीं, does not mean claim to claim somebody to request to have it. No, it's not like that. It means that it just wanted to, it just felt that it is really good. And it was grassy, उस पे there was vegetation, there were grasses, है ना, and it wanted wear, उतना टूट फूट नहीं था भी उस पे. And the other path was also taken equally, other path was also taken like that. So as though passing there has really about the same. So this is it, and I will explain it here. I have given it here in writing as well. He decides to take the other path, like path B, and he looks just as appealing as first one, है ना, इतना ही इसका appeal है. It was as attractive as the path one, perhaps even bit better because it is covered in grass and does not look like it has been walked on much. ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा चले हैं लोग, है ना. It does not appear that it has been walked on much. However, the speaker then realizes that in reality both paths are worn down and almost exactly the same amount. मतलब more or less ये phrase है, more or less मतलब कुल मिलाकर more or less paths are almost same. Now it comes to choice, है ना, choice and your own preferences, या आपके चुनाव और आपकी सुविधा, आपके कौशल, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि which path you will take. This paragraph means this. इस पैराग्राफ का मतलब ये है. नाउ सो द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ दैट दो बोथ वेज आर फाइन, बोथ पाथ्स आर ओके, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ which path you will take, path A or path B, because both paths are almost same and it is up to you that which path you will take. So this is it. Now let's come to the third paragraph. Perhaps there is one animation also which I could not play, and here, let's see. Let us see this one which we saw, and this is another issue, which path you can take. This is the same stanza. So you see here, girl is this also, as I mentioned about your subject streams. This girl is reading, then took the other as just as fair, just and as having fair, perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. अब ये लड़की है, ये आप लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, या आपकी नेता हैं. दिस गर्ल इज योर रिप्रेजेंटेटिव, शी इज योर लीडर, एंड शी हैज टू Then चूज took बिटवीन the other इंजीनियरिंग एंड नीट, as है ना. एज आई सेड, दो रास्ते जाते हैं आपके जीवन में, दो नहीं बहुत सारे रास्ते जाते हैं. तो इंजीनियरिंग, नीट, इस स्कूल में पढ़ें कि इस स्कूल में then took पढ़ें, the other यही है. as just और as लेकिन आपने fair, दूसरा and having रास्ता चुना, perhaps है the ना, better claim क्योंकि because it उसमें was अच्छा लग grassy रहा है and आपको, wanted आपको wear. अंदर से महसूस हो रहा है कि वो ज्यादा सही होगा. सो यू टुक द अदर पाथ, है ना. And then since you took the other path, so you have to justify it, you have to tell yourself that why did you take that path, है ना. क्या था उसमें कि आपने वो रास्ता चुना. तो वो रास्ता चुना इसलिए क्यों चुना, अब हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में. we'll see that in another paragraph. Let's see the third paragraph in a you see, and both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इनको पहचानिए, पीछे कौन दिख रहे हैं, ये आप फिल्मों में देखते हैं इनको. इन पर कई सारी फिल्में बनी हैं. तो विद्यार्थियों, अब हम इस तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं, और ये और भी थोड़ा सा गहरी बात करता है. पहले इसको मैं लाइन बाय लाइन कर लेता हूं, उसके बाद आगे आपको बताऊंगा. एंड बोथ मॉर्निंग इक्वली लो, दोनों रास्ते एक जैसे हैं. लीव्स
नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों रास्तों पर आज कोई नहीं चला. इट अपीयर्स दैट नोबडी हैज वॉकड ऑन बोथ द पाथ्स. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब लेकिन फिर भी जो पहला रास्ता था, मतलब ए जो था हमने ऊपर देखा था, उसको ये दूसरे दिन के लिए रख लेते हैं. येट नोइंग हाउ मेनी वे लीड्स ऑन द टू वे, फिर भी जानते हुए कि हाउ वे लीड्स टू वन, हाउ लीड्स ऑन टू वे. इस इसलिए पहला रास्ता चुना कि ये जो अब यहाँ देखना है दूसरा कंफ्यूजन होता है. सी वेरी बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस लाइन. हियर अपीयर्स अनदर कंफ्यूजन. ही इज सेइंग कि it is given in your guidebook or some teachers explain it like this, that this path also, path B also means to path A. No, it is not the case. ये कहा जाता है कई जगहों पे, आप देखते हैं कि पाथ बी जो है पाथ ए से मिलता है. नहीं, ऐसा नहीं है. इसका कहने का मतलब है कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहला पाथ मैंने दूसरे दिन के लिए रख लिया. आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई विल ट्रेवल इट अनदर डे, बट आई नो दैट बी लीड्स टू अदर पाथ्स, है ना, नॉट टू ए. बी विल अनदर डाइवर्स सी डी ई, है ना. जब आप एक नीट और इंजीनियरिंग में से एक चुन लेंगे तो फिर आप चूज करेंगे कौन सा स्ट्रीम में पढ़ना है ना, उसमें स्ट्रीम होती है, कौन सा स्ट्रीम पढ़ना है. डॉक्टर भी आप बन जाएंगे तो उसमें भी चूज करेंगे कौन सा स्ट्रीम पढ़ना है. बहुत सारे तरह के डॉक्टर होते हैं, तो वो पाथ वापस नहीं आता, वो अलग अलग हो जाते हैं. द पाथ विच हैज डाइवर्टेड डज नॉट कम बैक, है ना. येट नोइंग हाउ लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. और आप अगर आप दूसरा रास्ता ले लेते हैं तो आप वापस नहीं आएंगे उस रास्ते पर. दिस इज वॉट इट इज सेइंग, एंड इट इज ट्रू दैट वंस यू टेक दैट पाथ इट गोज फर्दर अहेड. जब आप एक बार वो रास्ता ले लेते हैं तो ये आगे चलता है, वो वापस नहीं आएगा. यही बात है इसमें, ठीक है. तो दिस इज वॉट इट इज स्टेटेड. I will again recite it in English, means paraphrase it in English. You can use these paragraphs in your writing. On that particular morning, both paths covered in leaves, and no one has walked on either of them yet that day. कोई उन पर उस दिन वहां पर चला नहीं था, और दोनों रास्ते जो हैं on particular morning, both paths are covered in leaves. दोनों जो है रास्ते पत्तियों से ढके हुए हैं. No one walked on either of them. अच्छा यूज है. You can see किसी पर, किसी एक पर नहीं. He decides to save the first path for another time. But he deeps down realizes, अंदर से उसको महसूस होता है कि life has rarely allows us to go back, कि हम वापस जाएं और ये रास्ते को पकड़ें. मैंने इसको सस्पेंड भी किया. Once you start down one path, it usually leads to other. देखो यही मैंने बोला, जब आप एक रास्ते पर शुरू होते हैं तो वो दूसरे रास्ते को ले जाता है. यहाँ से यहाँ, फिर ये फट जाएगा दो में, है ना, फिर ये फट जाएगा दो में, फिर यहाँ से, मतलब ये एक ट्री बन जाता है ना. So it which leads to other path, making it unlikely that he will ever return to start. ठीक है, अब इसका आप समझ गए बेसिक क्रक्स. अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. इसका एक मतलब ये है, आप एक सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे या कहीं भी, कि डार्क एक सीरीज है, और भी ऐसी कई सारी सीरीज हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आप जो जीवन में चुनते हैं वही आपको आगे जो है परिवर्तित, आपका आगे जीवन, उसको जीवन में वही चीज आगे आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है. व्हाट द चॉइसेस यू मेक, व्हाट डू यू डिसाइड, दैट डिसाइड्स how will you live your life. Literally, how will you live your life? What subject you have chosen, which school you are studying, that decides that what kind of person you will be. This is the crux of this paragraph and poem. Now let us come to the last paragraph. There he says that he has chosen something which is less travel, है ना. So I shall be telling this with a sigh. मैं एक आह के साथ ही कहूंगा कि somewhere edges and edges, कहीं edges और edges में two roads diverge in a wood. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference, है ना. अब देखिए, ये महिला यहाँ पर एक कम चुना हुआ रास्ता लेके आ गई है जीवन के अंत में. जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन सी द वुमेन, शी हैज ट्रेवल्ड हर लाइफ. इट इज अ depiction that she has traveled her life and she has reached at the end of her life. And what does it why is she's thinking, वो क्या सोच रही हैं खड़े होके, कि मैं अब कभी बताऊंगी कि ऐसा कभी हुआ था कि मैंने एक कम चुना रास्ता लिया था और मैं जीवन को यहाँ पर आके पहुंची हूँ जीवन में अपने. ठीक है. आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई. मैं शैल बी टेलिंग, इसको ध्यान दें, शैल बी टेलिंग, मैं कभी बता रही होंगी.
विद दिस साई, आह के साथ। आह मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, आह डज नॉट मीन नेगेटिवली हियर, नेगेटिव सेंस में नहीं, नकारात्मक रूप में नहीं कि आह भर के नहीं, एक मतलब गहरी सांस, गहरी सांस, डीप ब्रेथ, गहरी सांस, डीप ब्रेथ, समवेयर एजेस एंड एजेस। अब इसको काफी समय बाद, हेंस तब, टू रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते अलग हो गए एक जंगल में, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। वही मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जीवन, योर लाइफ इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द चॉइसेस यू मेड, यू हैव मेड, यू आर मेकिंग नाउ, है ना। तो इस बारे में मैं आपको एक ये कर लेते हैं, फिर एक दूसरे मेटाफर से एक्सप्लेन करूंगा। द स्पीकर इमेजिन्स हिमसेल्फ, स्पीकर अपने आप को कल्पना करता है इन डिस्टेंट फ्यूचर, दूर, भविष्य में, सुदूर भविष्य में, रिफ्लेक्टिंग, सोचना, है ना, रिफ्लेक्ट करता है ऑन हिज दिस मोमेंट विथ अ साई, गहरी सांस। ही सेज ही विल टेल द स्टोरी ऑफ हाउ ही केम टू अ फोक इन द रोड। फोक, एज आई मेंशन्ड इनिशियली, ये डाइवर्ज हुआ, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये दिस एरिया इज कॉल्ड फोर्क। फोक इन द रोड एंड chose the path, chose second form है, path that was less traveled. He concludes by saying, concludes present indefinite, he concludes by saying that this choice is the reason this life, his life has turned out ऐसी हुई, in this way it has, है ना। तो यही इसका मतलब है कि the choices you make डिसाइड्स योर लाइफ, जो आप चुनाव करते हैं वही आपका जीवन बनाता है। अब इसमें एक दूसरा पैर, एक मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसने कैसे चुना, उस व्यक्ति ने कैसे अपना चुनाव किया कि उसको कौन सा रास्ता लेना है ना। कैसे हम चुनते हैं, हम सभी के अपने 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 मानक होते हैं, अपने अपने पैरामीटर होते हैं, हम कैसे चुनते हैं, है ना। आप नीट चुनेंगे, मेडिकल चुनेंगे, कॉमर्स चुनेंगे, या इस स्कूल को चुनेंगे, उस स्कूल को चुनेंगे, ये दोस्त चुनेंगे, वो दोस्त चुनेंगे, वो टीचर चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, दैट डिपेंड्स कि आप चाहते क्या है ना। इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, दैट इज हाउ यू चूज। तो हाउ डिड राइटर चूज हियर, लेस ट्रेवल्ड, जो रास्ते पर कम चला गया था, है ना, उसको उसने चुना, कम चला। अब मतलब ही इज करेजियस, है ना, ही इज करेजियस, वो एक्सप्लोर करना चाहता है लाइफ, है ना, एक्सप्लोर करना चाहता है ना। एंड ही वांट समथिंग न्यू इन लाइफ। ये सब हमें समझ में आ रहा है, कहानी क्या है इसमें, ही वांट समथिंग न्यू इन लाइफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो लेस ट्रेवल्ड वो चुनता है। अब यहाँ पर एक कहावत मैं आपको बताता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू एन एडिज, कहावत, एडिज, ADAGE, प्रोनाउंसिएशन अलग है, एडिज, ADADAGE, लेकिन प्रोनाउंस होता है एडिज, आई की तरह, लेकिन स्पेलिंग है ADAGE, एडिज, एक कहावत, फ्रेज, है ना, उक्ति, जिसको आप सुनते हैं और आपने सुना भी होगा अपने जीवन में। लीका ही लीक गाड़ी चले, लीका ही लीक गाड़ी चले, लीका ही चले कपूत, लीक से हट के तीन चले, शायर से शेर सपूत। लीक मतलब जो रास्ते पर, पुराने रास्ते हैं, लीक, है ना, उन्हीं पर कौन चले, उन्हीं पर गाड़ी चलती है ना, उसी पर गाड़ी चलती है, रास्ते गाड़ी चलती है। और कौन चलता है, कपूत, कपूत मतलब खराब पुत्र, खराब संतान, दुष्ट संतान, जैसा कि आपके माता पिता आपको मानते हैं, है ना। तो लीका ही लीक गाड़ी चले, लीका ही चले कपूत, लीक से हट के तीन चले, हट के तीन चले, कौन चले, शायर, शेर और सपूत, है ना। तो यही बात जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अमेरिका में कही, उनके बाप ने भी कहा रहे होंगे, ही वुड हैव हर्ड दिस एंड ही रोट, ही शुड हैव टोल्ड दिस टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाइल चाइडिंग हिम, डांटते समय, चाइडिंग मींस डांटना, स्कॉल्डिंग हिम, डांटना। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी उनको कभी डांट रहे होंगे तो उन्होंने कहानी जो है जाके कह दी होगी, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर में कभी वो घूम रहे होंगे 1900 1800 में कभी, तो वो उन्होंने जाके इनको बोला होगा कि लीक कहीं लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक से हट के तीन चले, शायर शेर सपूत। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिख दी। अगर आपको इस कविता का सेंट्रल आइडिया याद करना है तो बस यही याद कर लें, लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक से हट के तीन चले, शायर शेर सपूत। बस यही इसका सेंट्रल आइडिया है बच्चों। तो ये आप इसको याद कर लें। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो राइटर है वो लेस ट्रेवल्ड रोड लेता है, मतलब लीक से हट के वो रास्ता तय करता है। तो इस कविता का आह्वान भी यही है कि आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा करेज करें और सही रास्ते पर चलें, और थोड़ा मेहनत वाले रास्ते पर चलें, जो कठिन एग्जाम है उसकी तैयारी करें, उसको निकालें और अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो इस तरह
बच्चों ये जो पार्ट है रोड नॉट टेकन खत्म होता है और इससे जो संबंधित पीडीएफ है अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करें, मैं जो है आपको उसको अपलोड कर दूंगा और इसके बाद हम अगले पार्ट